Morning students. Today's topic is Camphora officinalis. Common name is camphor and in Hindi kapur. And it is belong from vegetable kingdom. Family is Lauraceae. Proved by Dr. Hahnemann. Hahnemann says, Hahnemann साहब कहते हैं, the action of this substance is very difficult and puzzling, very puzzling and difficult of investigation, even in the healthy organism, because its primary action more frequently than with any other remedies alternates and become intermixed with the vital reaction of the body of the organism. On this account, it is often difficult to determine what belongs to the vital reaction of the body and what to the alternating effect due to primary action of the camphor. There is another medicine that should be in every house for emergency, but keep in the bathroom. Dr. Tyler very sophistically remarks in a drug picture that don't let camphor in any other remedy, near any other remedy. Dr. Hahnemann also says, who are introduced this drug, though this remedy is very powerful, it is very transient than any other remedy, any other drug. So this remedy is very used in frequently repetition till the reaction is ensured. In cholera, medicine is repeated every 5 minutes till warmth is restored. Mental symptoms: loss of memory and anxiety and restlessness and fear of being left alone and darkness and afraid of his own thoughts, hence want to divert his mind. Many also present a religious and purpurean feeling that she is going to die, relieved when she finds herself. Violent rage, hysterical, spites, bites and scratches and tear cloths, wants to jump out of bed and out of window and fit of crying, which patient is unable to explain. Crying, रोने के एकदम फिट आदमी लगते हैं जो जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता. वायलेंट रेजिंग के थॉट्स आते हैं, हिस्टेरिकल हो सकते हैं, स्क्रैचिंग कर सकता है, बाइट्स कर सकता है और कपड़े फाड़ सकता है तरह के, और विंडो से भी कूदने के थॉट्स आते हैं. मोस्ट कंप्लेंट फेल्ट ड्यूरिंग सेमी कॉन्शियस एंड disappear when thinking of them. So जब वो सोचता है कंप्लेंट्स के बारे में तब disappear हो जाता है. That is the mental symptoms. Camphor is universal antidote to medicine which is prepared from the vegetable kingdom. The patient is exceedingly sensitive to cold air like Omeprazole, Soranum, Nux vomica, Rumex, Kalicar also. These are the chilly remedies. And patient की जो surface है या skin है cold to touch, chilliness at cannot to be covered
throws off all covering like sickle core and metroidum. एंड इसके रिवर्स में या अपोजिट में जो सिम्टम है, कवरिंग पसंद करता है। और रेमेडीज़ कौन सी है? नक्स वोमिका, हिपसर, सोराइनम, दीज आर द चिली रेमेडीज, बट कवरिंग इज ऑल्सो लाइक, बट मेट्रोइनम, सिकल कॉर एंड कम्फर्ट चिली बेस्ड है, बट कवरिंग पसंद नहीं करता। नाउ द कोलैप्स कंडीशन विथ कोल्डनेस एंड लिविडिटी, इट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ कैंसर। Next is profound prostration. Profound prostration with rapid sinking of strength and discharge is scanty. Diarrhea, vomiting, urine, sweat, ये सभी डिस्चार्जेस जो है बहुत कम है, स्कैंटी है। These are the characteristic symptoms. Now the entire body painfully sensitive to slight touch. Slight touch से बहुत ज़्यादा पेनफुल महसूस करता है। ऐसा ही सिम्टम आपको कालिकार में और स्पाइजेलिया में मिलता है। नेक्स्ट इज कैम्फर इज इंटरनल हीट। कैम्फर हैज़ इंटरनल हीट एंड एक्सटर्नल कोल्डनेस। अंदर से गर्म कर रहता है, इसलिए वो कवरिंग नहीं पसंद करता, और बाहर से वो चिली है, कोल्ड है। सो ये कैम्फर की कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें ही आपको मिलेगी ये चीज़। नेक्स्ट इज कैम्फर विथ आइसी कोल्डनेस ऑफ लिम्ब इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैम्फर। क्या क्रैम्प्स है? क्रैम्प्स विथ आइसी कोल्डनेस ऑफ लिप्स, मतलब पैरों में क्रैम्प्स भी आएंगे और ठंडे पड़े हुए हैं। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ कैंसर। नाउ द रिपरकस्ड इरप्शंस ऑफ मेजल्स के सिम्टम्स, इरप्शंस पड़े हुए हैं एंड इसका रेटिना के पड़े हुए हैं, एंड इन ऑल सिक्वेले ऑफ मेजल्स के जो भी हैं सिम्टम्स चले आ रहे हैं। Now the indicated camphor is indicated in many conditions of sudden collapse. अचानक से collapse हो रहा है from overpowering influence। कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से सडनली collapse चला गया, तो वहाँ पर कैम्फर आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड ऑल्सो where their bad effect of injury, shock या सन स्ट्रोक या एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, इन सब जगह पर आप कैम्फर को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इन कॉलेरा कैम्फर, क्यूप्रम एंड वेरेट्रम, दीज आर द ट्रायोज ऑफ कॉलेरा। सो इन कैम्फर में आप देखेंगे कि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉलेरा में काम आता है, जहाँ पर एज ए प्रोफाइलेक्टिक भी काम कर सकती है, जबकि क्यूप्रम मेट इज़ लेटर स्टेज में काम करती है और वेरेट्रम इज़ लास्ट स्टेज में। नेक्स्ट डिस्चार्जेस कैसे हैं? कैम्फर के अंदर डिस्चार्ज स्कैंटी हैं, क्यूप्रम के अंदर डिस्चार्जेस लेस मार्क्ड, बट वेरेट्रम के अंदर प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस हैं। कोलैप्स कंडीशन को देखें तो कैम्फर में आपको सडन कोलैप्स कंडीशन मिलेगी, क्यूप्रम के अंदर कोलैप्स कंडीशन मिलती है, और वेरेट्रम के अंदर आपको कोलैप्स कंडीशन उतनी ज़्यादा नहीं मिलती। तो कोलैप्स कंडीशन सबसे ज़्यादा आपको कैम्फर में मिलेगी, डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा आपको वेरेट्रम में मिलेगी। नेक्स्ट इज़ क्रैम्प्स की बात करें। तो क्रैम्प्स इज़ कैम्फर के अंदर लेस मार्क्ड, क्यूप्रम में मार्क्ड है, क्रैम्प्स आते हैं, क्यूप्रम में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं। वेरेट्रम के अंदर वायलेंट क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा वहाँ क्रैम्प्स आने लगते हैं, कन्वर्जन्स आने लगते हैं। नौशिया की बात करें तो नौशिया कैम्फर में मार्क्ड है, यानी कि होता है, और क्यूप्रम में लेस मार्क्ड है, और वेरेट्रम में भी लेस मार्क्ड है। ऑफ द कैम्फर, सो एग्रेवेशन ऑफ द
symptoms by motion at night and in cold air, and amelioration is by the thinking of the complaint and warm air. So cold air में aggravation होगा, warm air में amelioration होगा, और उसको कंप्लेन की सोचता है कंप्लेंट्स के बारे में, तब उसको बेटर फील होता है एंड कुछ मोशन से एग्रीवेशन होगा और रात को उसको एग्रीवेशन होगा. तो दीज आर द मॉडलिटीज़. एंड रिलेशन की बात करें तो सभी जो वेजिटेबल किंगडम से बनाई गई रेमेडी हैं उन सभी में ये को एंटीडोट करती है. सो कैम्फर एंटीडोट्स नियरली एवरी वेजिटेबल्स मेडिसिन एंड टबैको एंड ओपियम. कंपेयर करें तो वेरेट्रम से, सिकल कॉर से, क्यूपरम, इन कॉलेरा के केस में. एंड एंटीडोटेड बाई कलकमारा, phosphorus and opium. So this is camphor. Thank you.